بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیسن ہے اسٹوڈنٹس ہمارا وہ ہے جمع مکسر کے بارے میں۔ جمع مکسر کا مطلب کیا بتایا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ مکسر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹوٹی ہوئی جمع، توڑی ہوئی جمع، یاد آ رہا ہے نا؟ مکسر ٹوٹی ہوئی جمع، یہ وہ جمع ہے جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے، یعنی بدل جاتی ہے، اور اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے۔ جمع مکسر کو بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کچھ حرف بڑھا گھٹا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی کوئی ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے یا کسی ورڈ کو کاٹ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے کبھی انہوں نے جو الفاظ سیکھے میں وہ پڑھ رہا ہوں پھر اس کو آسان کروں گا، کبھی محض حرکات و سکنات میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے، یعنی کبھی زبر زیر پیش کے اندر چینجنگ ہو جاتی ہے۔ تغیر و تبدل کا مطلب ہے چینجنگ، ٹھیک ہے؟ تو زبر زیر پیش میں جزم لگا دی، ہٹا دیا، اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے جمع مکسر۔ سب سے پہلی چیز جمع مکسر کی جو انہوں نے ڈیفینیشن میں کہی وہ یہ کہی کہ جمع مکسر میں واحد کی تصویر، واحد کی جو صورت ہوتی ہے، واحد کا جو اسٹرکچر ہے، واحد کا جو ڈھانچہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نہرن کی جمع ہے انہارن، کیا لکھا ہے انہوں نے بتائیں؟ اچھا دیکھیں، ہم عام طور پر انہار لکھتے ہیں، انہوں نے کھڑا زبر لگا کے لکھ دیا، حالانکہ انہار یوں لکھا جاتا ہے، انہارن، نہرن سے وعلیکم السلام، نہرن سے انہار یوں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور نہر کی ایک جمع انہر بھی آتی ہے، کیا آتی ہے بتائیے؟ بولنے سب کیا آتی ہے؟ انہر، یا تو انہار آتی ہے یا انہر آتی ہے، تو نہروں کی یہ دونوں جمع۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی جمع مکسر اعلی مثال یا حذیفہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جمع مکسر کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب میں نے ورڈ یوز کیا نہرن، تو یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ نہرن واحد ہے، ایک ندی یا ایک نہر یا ایک دریا، نہر مطلب دریا، ایک دریا، ایک نہر۔ اچھا، اب جب ہم نے اس کی جمع عربی میں دیکھی تو وہ ڈکشنریز ہمیں بتاتی وہ آتی ہے انہار یا انہر، کیا آتی ہے؟ ابھی ہم یا انہرن، یہ کو پیش دیکھا، ابھی ہم انہار کو لے لیتے ہیں، نہر کی جمع ہے انہار۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ انہار اور نہر میں فرق کیا ہے؟ نون کے اوپر زبر ہے، نہرن کے اندر جو واحد ہے وہ کیا ہے؟ نہرن ہے، نون پہ زبر ہے اور ہے ساکن ہے کہ نہیں؟ جیسے اس کی جمع بنی تو نون سے پہلے الف کی ایڈیٹنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور نون ساکن میں چلا گیا، اور ہے کے اوپر الف آ گیا کھڑا زبر، یہاں پہ انہوں نے دیا الف ہے، وہ الف ہے الف ہو گیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ٹوٹ پھوٹ ہوگی، جبھی اس جمع کو کہتے ہیں جمع مکسر، کہ واحد کا لفظ جب جمع میں جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے والی جو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا لیسن میں، وہ پڑھا تھا جمع سالم کو، اس کے اندر آخر میں اضافہ ہوتا ہے، لفظ میں ٹوٹ پھوٹ اور وہ چیز نہیں ہوتی، رد و بدل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ معمولی سا کہیں جیسے تا کا وہ تو ایک الگ ہے، ورنہ نہیں ہوتا کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں جمع مکسر میں کیا کہ اس کے اندر واحد اور جمع بالکل اس کے اندر چینجنگ ہو جائے گا، عام طور پر یہی ہوتا ہے، بہت کم مثالیں جس میں نہیں ہوتی ورنہ ہو جاتی ہے چینجنگ، ٹھیک ہے نا؟ تو نہرن کی جمع کیا آ گئی بتائیں؟ انہارن، تو دیکھیں الف پڑ گیا جو کہ نہرن میں نہیں ہے، تو یہی تو بات انہوں نے لکھی ہے۔ اب اگر آپ غور سے پڑھیں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے، جب جمع میں جاتا ہے نا واحد تو پھر واحد کی صورت کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے، یعنی بدل جاتی ہے، اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اونا اینا لگا دو اینڈ میں، آنی آئینی لگا دو، آتون آتین لگا دو، جو آپ نے جمع سالم میں پڑھا، ایسا کوئی بھی، یا تسنیہ میں پڑھا، ایسا کوئی قاعدہ نہیں۔ اس جمع کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ڈکشنری کو فالو کریں گے، پھر جب آپ عربک پڑھتے ہیں اور مختلف ورڈز ہوتے ہیں اور اس کے اندر جب آپ اس کی وہ وکیب یاد کر رہے ہوتے ہیں تو بندہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی بہت ساری جمع مکسر اس لیسن میں آ جائیں گی، اس کے بعد آگے مزید اس کا پورا ایک چیپٹر آ رہا ہے جمع مکسر ریلیٹڈ، بڑی ڈیٹیل میں آ رہا ہے پورا چیپٹر ہی جمع مکسر کے بارے میں، تو لائٹلی آپ کو صرف ایک ڈیفینیشن انہوں نے یہاں پہ بیان کی۔ اب ایک دو اور مثالیں پڑھ لیتے ہیں نا، پھر آپ کا سوال بھی سن لیتے ہیں انیس بھائی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ایک اور مثال انہوں نے دی ہے تاکہ اور زیادہ پکچر کلیئر ہو جائے کہ کیا ہے جمع مکسر۔ سب سے پہلا یہ لفظ اس کے بعد والی مثال دی ہے رجل، کیا ہے؟ رجل کا معنی ایک مرد، یہ واحد ہے۔ اب اس کی جمع بنی، کیا بنی انیس؟ رجال، رجال۔ اچھا، رجال جب بنی تو را کو واحد کے اندر دیکھیں جب سنگولر اس میں فارم میں تو وہاں پہ کیا زبر ہے، اور رجال میں کیا آ گئی؟ کاشف زیر آ گئی۔ اچھا، جیم تو پیش ہے، یہاں جیم کو کیا آ گئی؟ جمع میں زبر آ گئی، یہاں پر الف ہے رجل میں، لیکن رجال کے اندر کیا آ گیا؟ الف بھی آ گیا، تو رجال، تو یہ ساری ٹوٹ پھوٹ تو ہو رہی ہے، اور کیا ہوگی؟ جبھی تو یہ جمع مکسر ہے کہ واحد کا اسٹرکچر ٹوٹ جاتا ہے، پورا پورا ٹوٹ گیا ہے، بدل گیا، یعنی حرکات و سکنات میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے، جو اس کے آخر کے اندر
जो लास्ट लेटर होता है उसके अंदर जो जबर जेर पेश होती है उसके अंदर चेंजिंग हो जाती है, ये भी होता है, और बीच में भी हो जाती है, शुरू में भी हो जाती है, कहीं पे भी मतलब वो हो सकता है चेंजिंग। भाई लास्ट लफ्ज को तो आमतौर पर पेश ही पढ़ते हैं ना, अभी जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन शुरू में बीच में कहीं अलिफ पड़ गया, कहीं जबर जेर पेश बदल गए, हर्फ का भी इजाफा हो रहा है, ये सब चीजें जमा मुकस्सर में होती है। तो रजुल की जमा क्या हो गई? रिजाल। रिजाल का क्या मतलब हुआ? बहुत से बात। अब ये जितनी मिसालें इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो आपका सुनते। इसी तरह आगे पढ़े, वजीरुन। बोले वजीरुन का मतलब क्या है? एक मिनिस्टर। जी जी जी, क्या कह रही हैं आप? वो मैं कह रही हूँ कि ये कोई भी हम वर्ड लेंगे, वाहिद लेंगे, उसमें ये लग सकता है कि ऐसे मुख्तसर वर्ड होंगे, खाली मुख्तसर। आप सवाल कोई से भी दोबारा वर्ड में इस तरह आप वाज़ेह होगा करें क्या जमा कहना चाह रही मुकस्सर। हैं। देखिए, जमा मुकस्सर के हर वर्ड का अपना एक अंदाज है जो उसकी जमा हो, इसका कोई एक रूल नहीं है जिसको हाँ, हम तो ये हर फॉलो वर्ड में कर यूज सकते हो हैं। सकता है ना, कोई भी वर्ड इसका यूज होगा ना, कोई भी वर्ड होगा ना ये जमा कोई भी जमा, हाँ हाँ, कोई भी वर्ड हो सकता है। ये खास, ये तो दो चार मिसालें दी है इन्होंने यहाँ पर। कोई भी लफ्ज है, कोई भी लफ्ज आ सकता है। और मैंने आपको बताया ना, असल चीज इसके अंदर डिक्शनरी है। डिक्शनरी बता दी है कि इस लफ्ज की क्या जमा है, और जमा मुकस्सर बहुत सारे अंदाज में भी आती है। हसन क्या बन जाएगा? हसन हसन की जमा उसका जो क्या यूज बन होती जाएगा? है, नॉर्मल जो यूज होती है वो हसनूना हसनीना हो गई, ठीक है ना। अब बाज अल्फाज ऐसे होते हैं, मैं चाह रहा था कि मिसालें कंप्लीट करता फिर मैं आपके सवाल सुनता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपने कर दिया सवाल। इन्होंने कहा क्या ये किसी भी लफ्ज के अंदर ऐसा हो सकता है जमा मुकस्सर आ सकती है? जी आ सकती है, और असल चीज डिक्शनरी बताती है कि इस लफ्ज की जमा मुकस्सर है या नहीं है। बाद औक़ात ऐसा होता है, बाद अल्फाज होते हैं, ये कुछ मालूमाती बातें सुन लें, कि जिसकी जमा सालिम भी होती है, जमा मुकस्सर भी होती है, बाद ऐसे लफ्ज होते हैं, ठीक है। और बाद ऐसे लफ्ज होते हैं कि जिसकी जमा सालिम इस्तेमाल हो रही है, बाद ऐसे होते हैं जिसकी जमा मुकस्सर इस्तेमाल हो रही है। तो ये पढ़ पढ़ के बंदा अपडेट होता रहता है, डिक्शनरी से पता लगता है। अब जैसे इन्होंने कहा कि हसनुन की जमा क्या है, तो हसनुन की जमा आप लोगों ने क्या पढ़ी थी? जमा सालिम। अगर मुज़क्कर की बनाएंगे तो हसनूना हसनीना, और अगर मुन्नस की बनाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? हसनातुन और हसनातिन पढ़ी थी। लेकिन अगर आप इसकी जमा मुकस्सर बना चाहते हैं तो वो हिसान होती है। क्या होती है? हिसान, सीन के साथ, सौद के साथ नहीं। अगर हिसान सौद से बोला तो घोड़ा हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखें। हिसान सौद के साथ बोला तो घोड़ा हो जाएगा, सीन के साथ बोलेंगे तो क्या होगा? जमा मुकस्सर। बहुत से खूबसूरत लोग, ये हो जाएगा, जमा मुकस्सर हो जाएगी। मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ, ये हिसान हो गया, और जो है वो हा को जेर भी चले हम लगा देते हैं, ये है वो हिसान, ये इस तरह। तो असल में मैंने जो जैसे हमने वो मुज़क्कर मुन्नस में नहीं पढ़ा था कि बाज़ चीजें अरब के यहाँ समाई होती है, जैसे मुन्नस समाई, उसे हमने सुना और जैसे अरब बोलते हैं उसको फॉलो किया गया। जमा मुकस्सर का भी यही मसला है कि ये समाई, उसका कोई रूल नहीं है बात। अरब जिस लफ्ज की जिस तरह जमा बनाते हैं, लेकिन बंदा जब किसी लैंग्वेज को सीखता है, उसके वर्ड्स मीनिंग याद करता है, उसको पता होता है ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, डिक्शनरी पढ़ता होता है, अपडेट होता है, तो ये उससे उसके बाद फिर इसके ना ग्रिप आ जाती है। तो अभी इब्तिदाई तौर पर खुद उन्होंने आसान करने के लिए आपको खुद मिसालें बना के दे दी। अच्छा, अब आपका कोई सवाल तो नहीं है? बात क्लियर हो गई जो आपने सवाल किया, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है हमारे साथ? आगे बढ़ूं मैं, या कोई सवाल है तो कर सकती हैं आप। जी नहीं, बस अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखें, अब जो है वो, अब ये भी बात ध्यान में रखें आप कि अपना ये लफ्ज आ गया वजीरुन, हम यहाँ पढ़ते वजीरुन का मतलब मिनिस्टर, वजीर, ठीक है ना, वजीर वजीर ही होता उर्दू। तो वजीर की जमा इन्होंने लिखी है वुज़राउ। क्या पढ़ेंगे इसे? ये जो दो पेश है ना, ये दो पेश नहीं है भाई, ठीक है, बल्कि इसको एक पेश बना दे, ये एक पेश है। ये लफ्ज भी उन्हीं अल्फाज में से है जिसको अरबी में तन्वीन नहीं आती। हमने पढ़ा था ना, बाद अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिसको अगर हम चाहें भी तो दो पेश नहीं पढ़ सकते, ये उनमें से। तो ये मिस प्रिंटिंग है। वजीर की जमा क्या है? वुज़राउ। सब बोले। आप देखें, वुज़राउ जो जमा है, इसके अंदर वजीर के सिंगुलर को देखें और फिर प्लूरल को देखें, दोनों को कंपेयर करें, तो ये बिल्कुल ब्रोकन एक यानी कि प्लूरल हो गई, जो एक ऐसी यानी कि जमा हो गई कि जो टूटी हुई जमा, मुकस्सर हो गई, जमा मुकस्सर हो गई, ठीक है। सही में आ रहा है ना आपको? और एराब के अंदर भी चेंजिंग हो रही है, वजीर में वाव पे ज़बर है, यहाँ पे वाव को पेश आ गई। तो जब वाहिद का स्ट्रक्चर जब जमा में जाता है और वो सलामत नहीं रहता, तो इसीलिए उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद इसी तरह आगे लिखा हुआ किताबुन, बोलते जाए, इसकी जमा क्या है पढ़ के बताएं? कुतुबुन। देखिए, किताब के अंदर तो काफ को जेर है, ते के बाद अलिफ है, या जमा में वो हट गया, अलिफ हट गया ना, काफ को भी उसको काफ को पेश आ गई, कुतुबुन, कुतुब। अच्छा, इसके बाद है खशबुन, बोले इसकी जमा क्या है? खुशुबुन। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो खुशुब है, खुशुब, इसके अंदर
अल्फाज के अंदर देखें तब्दीली नहीं हुई लेकिन जबर जेर पेश में हो गई तो भी ये जमा मुकस्सर ही काउंट होगी, इसका कोई मसला तो नहीं। तो ये है जमा मुकस्सर। अच्छा, अब देखिए इन्होंने आगे लिख दिया जमा मुकस्सर का मुफस्सल बयान, तफसील के साथ इसको जो डिटेल में जो है वो जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो सबक नंबर 9 में होगा। इसका मतलब मजीद इसका पूरा एक चैप्टर इसके बारे में आ रहा है। अभी ये डेफिनेशन थी, इसको अगर आपको समझ में आ गई तो इतना भी काफी है। अब इसके बाद इन्होंने एक तंबीह दी है, इसमें कुछ अहम बातें बताई हैं, ठीक है ना। वो ये है कि अगर आप गौर करें तो इसके अंदर लिखा हुआ है इन्होंने कि बाज अस्माए मोनस की जमा सालिम मुज़क्कर की तरह की आती है। देखिए अब इन्होंने थोड़ा सा जो अगेंस्ट द रूल जैसे कि बाज चीजें ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जा रहे होते हैं उसके बारे में बता दें। अब एक लफ्ज है आपके सामने, वो लिखा हुआ है सनतुन, देख रहे हैं आप लोग, बोल रहे हैं इसको, क्या लफ्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है साल, ठीक है ना, जिसको इन्होंने लिखा है बरस, बरस यानी साल, सना कहते हैं ईयर को, साल को। तो अब इसकी जमा जो कायदे के मुताबिक, क्योंकि ये मोनस लफ्ज है, ये भी तो हमें ध्यान में रखना है ना, जब ये मोनस है तो इसकी जमा मोनस के फार्मूले पे बनाए। तो जमा मोनस जब बनाते हैं तो अहले अरब ने इसकी जो जमा बनाई है वो आतुन आतिन अगर एंड में ऐड करते हैं, आखिरी में इसका इजाफा करते हैं, तो वो बनती है अहले अरब के यहाँ सनवातुन सनवातिन। बोल लें क्या बनती है जमा, सनवातुन सनवातिन। ये अहले अरब ने इसकी जमा सालिम रखी, ठीक है ना, यानी बहुत सारे साल। लेकिन ये ऐसा लफ्ज है कि हालांकि सनतुन के एंड में गोलता आ रही है तो इसकी जमा आतुन और आतिन वाले ही फार्मूले पे बननी चाहिए थी, क्योंकि मोनस अल्फाज की जमा मोनस बनेगी और मुजक्कर की जमा मुजक्कर बनेगी, साल की जमा। लेकिन ये ऐसी जमा है कि इसको मुजक्कर की भी तरीके पे बनाया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर सनतुन की एक जमा जो अभी मैंने आपको बताई, वो आपको क्या बताएं? हाँ भाई, सनवातुन सनवातिन, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। और इसके अलावा इसकी मुजक्कर के तरीके पर जमा आती है, वो भी पढ़ने को आती है, सीनूना, बोले, और सीनीना। मैं इसको आसान करते हुए आपको ये बताऊंगा कि ये लफ्ज खास है और ये इसी के साथ ये कायदा है कि बस सनतुन की सालिम बनानी है तो सनवातुन सनवातिन बना देनी है। क्या बनानी है? सनवातुन या फिर सनवातिन, दो जेर भी लगा दे भाई नीचे, इन्होंने सनवातुन ही लिखा हुआ, खाली सनवातुन भी हो सकती है, सनवातिन भी हो सकती है। और अगर इसकी यानी और इस लफ्ज की जमा आम कायदे से हटके आती है, मुजक्कर के तरीके पे आती है, तो दोनों चल रहे हैं इसके अंदर, मुजक्कर मुअन्नस में। लेकिन ये पर्टिकुलरली इसी वर्ड से रिलेटेड ये बात है, इसी के बारे में खाली बोल रहे हैं, हर लफ्ज में ऐसा नहीं होता। वरना अगर आप सोचें तो देखें इसमें बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। सनवातुन जो जमा सालिम है, इसमें भी तो वाव आ रहा है, तो बस अहले अरब ने ही इसको इस तरह इस्तेमाल किया, इस लफ्ज को इसी तरह खास है, ये रट के याद कर लें। ये सिर्फ इस लफ्ज से मुताल्लिक ये बहस की जा रही है, याद रहेगा ये। अब इसके बाद एक जो है इन्होंने बड़ी जबरदस्त एक देखें नीचे ये एक फुट नोट लगाया हुआ, हाशिया लगाया हुआ इन्होंने, ठीक है। उसके अंदर ये क्या कहते हैं, नीचे देखें, ये पढ़ लें, हाशिया लगा हुआ है किताब के नीचे, नंबर 1 लगा हुआ है। इन्होंने लिखा है मगर बाद अल्फाज में वाहिद और जमा की सूरत एक ही रहती है। ये जमा मुकस्सर के ऊपर फुट नोट है, ठीक है ना। जमा मुकस्सर के बारे में कहा जा रहा है कि जमा मुकस्सर में आम तौर पर तो टूट होती है। मैंने शुरू में आपको बताते हुए इशारा दिया था, मैंने कहा था बहुत कम ऐसा होता है कि वाहिद और जमा में तब्दीली ना हो, वरना तब्दीली होती है, बहुत कम होता है। उसकी एक मिसाल ये कि ये मुकस्सर ही में काउंट होता है, इसको मुकस्सर में ही लेते हैं अरे अरब, एक ही वर्ड है, यानी खास उसी के बारे में बात हो रही है। फुल्कुन क्या लिखा हुआ, कुरान में भी आया लफ्ज, और इसका मतलब होता है कश्ती, पानी के जहाज को बोलते हैं फुल्क, ठीक है ना। तो कश्ती के लिए आया कुरान में। फुल्क जो है कश्ती, ये वाहिद भी है और इसकी जमा भी यही है, फुल्कुन ही है। एक कश्ती है तो भी फुल्क बोलते हैं, और बहुत सारी कश्तियां हो तो भी फुल्क ही कहते हैं, और इसका शुमार भी जमा मुकस्सर में है, देखे लिखा हुआ भी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये खास लफ्ज है जो आम कायदे से हट करे, वरना आम तौर पर जमा मुकस्सर के अंदर तब्दीली होती है, लेकिन इसमें नहीं। ध्यान में रहेगा, कोई बस ये मालूमाती बातें जिसको याद कर लेना है, ये याद करने वाली बातें, ये रूल्स फिक्स है। ये सनतुन वाला और ये सारा, ये जो फुल्कुन, ये एक ही मिसाल है। अब इसके बाद एक और तंबीह इन्होंने कह दी, एक और नोट बयान कर दिया। तो कह रहे हैं कि याद रखो, तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम के आखिर में जो नून होता है वो नून एराबी कहलाता है। पहले तो मुझे पता है, तस्निया की एक मिसाल दोबारा दे दें। अगर मैं आपके सामने एक लफ्ज इस्तेमाल करूँ, ठीक है, और मैं कहूँ तय्यिबुन उम्दा, तो इसकी तस्निया बनाए काशिफ, तस्निया का मतलब होता है दो बनाना, पेयर बनाना। मैंने कहा है तय्यिबुन, ठीक है। अब आप इसकी तस्निया, शाबाश, तय्यिबानी सब बोलें,
तय्यिबैनी, ये नून आ रहा है जिसको जेर है, तय्यिबानी तय्यिबैनी, इस नून के बारे में बात हो रही है। इस नून को कहते हैं नून एराबी। इसका क्या नाम है? अरबी ग्रामर की जो टर्म्स है उसके अंदर नून एराबी, ठीक है। अच्छा, अब आपसे अनीस सवाल है कि इसकी जमा मुज़क्कर सालिम बनाए जरा, तय्यिबुन की, उम्दा मुज़क्कर सालिम। हाँ हाँ, तय्यिबूना तय्यिबीना, सब बोले। बहुत सारी यानी उम्दा मुज़क्कर चीजें हम कर लो, ये जानदार बेजान दोनों के लिए है तय्यिब का वर्ड, ठीक है। कोई भी चीज अच्छी है, बेस्ट क्वालिटी, उसको तय्यिब कह सकते हैं, उम्दा। अच्छा, अब तय्यिबूना तय्यिबीना, यहाँ पे भी आपने आखिर में क्या बोला? नून। जमा के नून को ज़बर आती है, ये इसका याद रखा करें आप। और जो तस्निया वाला नून है, दो वाला, उसको क्या आती है? ज़ेर। तो ये जो दोनों नून है ना, आनी आईनी वाला और ऊना ईना वाला, जमा मुज़क्कर सालिम वाला और तस्निया वाला, इस नून को कहते हैं अरबी में नून एराबी। और अब आप इसको यूं समझ लें कि आप चाहें तो आगे एक लिख लें, जो मैं आपको जुमला कह रहा हूँ, यानी लिखा किताब में, ये नून एराबी कहलाता है। और ये नून, इसके बाज अरबी ग्रामर के कवायद की रोशनी में ये नून गिर भी जाता है। वो क्या है? बाज कवायद वो आगे आएंगे। ये नून गिर भी जाता है, ये नून असली नहीं होता, जो लिखा। बसा औकात ये नून गिर भी जाता है, गिर जाता है, ठीक है ना। सिर्फ यूं बोलते हैं तय्यिबा, तय्यिबई, तय्यिबू, तय्यिबी, जो आगे नून है ना, ये गिर जाता है। अब कब गिरता है, क्या डिटेल है, वो हम आगे जब जाएंगे, एक लेसन आएगा वहां पढ़ लेंगे। ये मतलब है नून अरबी का, कि नून असली नहीं होता और गिर जाता है। ये पॉइंट भी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आप लोग, ठीक है ना, सही में आ रहा है ना। अब इसके बाद जो है वो हम आगे पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। कहते हैं कि बाज अस्मा, ये इसम की जमा है, यानी बाज नाउन ऐसे होते हैं जो वाहिद की सूरत में होते हैं। ये बड़ा अहम और बहुत आसान सी और बड़ी दिलचस्प बात है। कह रहे हैं बाज अस्मा, बाज इसम ऐसे होते हैं जो वाहिद की सूरत में होते हैं। बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है कि वो सिंगुलर है, लेकिन वो एक जमात पर बोले जा रहे होते हैं। जब उसके मीनिंग देखते हैं तो वो बहुत सारे लोगों पे बोले जा रहे होते हैं, और उनका वाहिद भी नहीं होता। उनके लिए वाहिद का अलग से कोई लफ्ज ही नहीं है, वही वाहिद है, वही जमा है, क्या, ठीक है ना। तो इसलिए कि दर हकीकत वो जमा नहीं होते, ऐसे इसम को इसमें जमा कहते हैं। देखिए अभी आप समझ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखें पहले भी शायद हमने, पता नहीं है मैंने एक्सप्लेन किया नहीं किया, बयान किया है ना। हाँ, कि देखें एक तो जमा आपने नॉर्मल पढ़ी, जो क्या थी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, तय्यिबूना, तय्यिबीना, या जमा मुकस्सर पढ़ी, रिजाल। और एक होता है इसमें जमा। इसमें जमा जो है ना, वो ऐसे इसम को कहते हैं कि जो बज़ाहिर एक हो, लेकिन उसके माना बहुत सारे लोगों पे बोले जा रहे हो, ठीक है। और अगर हम उसका पीछे वाहिद देखना चाहें तो वाहिद भी ना हो, क्या ना हो। तो ये फर्क है इसमें जमा और जमा में। जमा का वाहिद होता है और इसमें जमा का वाहिद नहीं होता है। मिसाल क्या है, रिजालुन, ये क्या है बताएं, रिजाल क्या है? रिजाल जमा है या वाहिद है? जमा है, इसका वाहिद क्या है? रिजाल माना बहुत से मर्द है ना, रजुल, ये वाहिद आ गया। खुशुबुन, लकड़ियां, अभी आपने पढ़ा, खशबुन, लकड़ी हो गया। अनहारुन, नहरें, इसका वाहिद क्या है? नहरुन। लेकिन इसमें जमा उसको कहते हैं कि वही वाहिद होता है, वही जमा के लिए बुलाया जाता है। बज़ाहिर वो वाहिद होता है, लेकिन उसके माना जमा वाले होते हैं, सही ना। जैसे कौमुन क्या है, तो इसमें जमा हो गया। कौम को अगर मैं आपको कहूँ कौम की वाहिद बताओ, तो आप कहेंगे कौम की वाहिद नहीं, जमा होती है। कौम की जमा आती है अक़वाम, अक़वामुन, कौमें। लेकिन कौम को मजीद पीछे अगर हम रिवर्स करें तो वो नहीं होता। तो इसमें जमा का वाहिद नहीं होता, ये इसकी पहचान है, जमा और इसमें जमा। बन सकता है दो कौमें, बिल्कुल, कौमानी कौमैनी, दो कौमें हो गई, टू नेशन, ठीक है, उसके लिए हो जाएगा कौमानी कौमानी, तस्नीया आ सकता है, जमा आ सकता है, वाहिद नहीं आएगा इसका। अच्छा, अब कौम का मतलब क्या, देखें ना, पाकिस्तान 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, एक लफ्ज के ना वो सब आगे कौम। अगर हम कहें पाकिस्तानी कौम, सब आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, और इसमें कोई जमा की निशानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसको फिर एक अलग वर्ड यूज होता है, शाकुल पाकिस्तानी। अच्छा, अब ये देखें क्या है आगे। अच्छा, रहतुन क्या है? रहतुन, रहतुन का मतलब भी होता है ग्रुप या जमात या ग्रुप। तो ये भी ऐसे ही, रहतुन को पीछे देखेंगे तो इसकी कोई भी वो नहीं है, ठीक है ना। तो ये लफ्ज़ बज़ाहिर वाहिद है, लेकिन लोगों की जमात बहुत बड़ी भी होती है, लाखों अफराद की भी वो मजमू होता है, उसको जमात कहते हैं। अब आगे ये कह रहे हैं कि अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें इसकी सिफत लगानी है, क्या लगानी है? ऐसे लफ्जों की, किसकी? जो कौम जैसे अल्फाज हैं इसमें जमा। तो कह रहे हैं इबारत में, यानी अरबिक टेक्स्ट में इनका इस्तेमाल उमूमन आमतौर पर जमा की तरह होता है। जब इसकी सिफत लगानी है तो जमा में लाएंगे। अगर आप कहते हैं नेक कौम,
तो आप यूं कह दिया करे कौमुन सालिहून, क्या कहें रहतुन फासिकून, गुनाहगार गुरु, तो यूं हो जाता कौमुन सालिहून नेक कौम। तो इसकी सिफत जब लगानी हो तो उसको जमा में इसकी सिफत को ले आया जाता है, क्योंकि इसके मीनिंग भी जमा वाले ये बात है। तो ये बात यहाँ पर मुज़क्कर जमा है, जी हाँ मुज़क्कर जमा है, बिल्कुल सही बात आपने, ये भी देखिए नोट करने वाली बात, सही कहा। अच्छा पॉइंट नंबर 5 पर बस नहीं है, यहाँ तक तुम समझ लोगे, तक जो लिखा है ना यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा। इसका लास्ट पॉइंट जो है ना फिर मैं इसको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करके आइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीसरे और चौथे सबक में तुम पढ़ चुके हो कि एराब में, तारीफ और तनकीर में, यानी मारफा नकेरा में, एराब क्या है ज़बर ज़ेर पेश, तारीफ तनकीर क्या है नकेरा मारफा, और तस्कीर तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस में सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होती है। ऐसा ही है ना, सिफत वैसी होगी जैसा मौसूफ होगा, ये उन्होंने बता दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, अब ये भी याद रखो कि वहदत तस्निया और जमा में भी सिफत को अपने मौसूफ के मुताबिक होना चाहिए, मुवाफिक होना चाहिए, मुताबिक होना चाहिए की बात है। कह रहे हैं कि अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफत क्या होगी, सब बोले वाहिद, मौसूफ तस्निया है तो सिफत, मौसूफ जमा है तो सिफत जमा, मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत मुज़क्कर, मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत मुअन्नस। इसमें जमा के लिए तो बता दिया ना उन्होंने कि आप मुज़क्कर की जमा के तौर पर ले आओ तो खत्म, फिक्स हो गई बात। चाहे वो मुअन्नस जमा नहीं तो ये लफ्ज ही इस लफ्ज के साथ ही यही आएगा ना। अब जैसे कौमुन का लफ्ज है तो एक ही लफ्ज है ना, इसको आप क्या मुअन्नस बनाएंगे, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस और ये सारे ऑप्शन तो है नहीं, तस्निया जमा वाले। कुछ चीजें जैसे नाम है सैयारा तो नहीं इसमें बोलता है। हाँ हाँ अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं, तो वो इसमें जमा तो नहीं है ना, ये तो आपने एक अलग सवाल कर ली। सैयारा गाड़ी, इसमें जमा ऐसा कोई अल्फाज नहीं जो नहीं, इसमें जमा मखसूस अल्फाज होते हैं वो इसी तरीके के, उसमें आपको इसी का करना है। जो अब आपने मिसाल दी ना जैसे सैयारतुन की, तो इसको आप सोचिए सैयारतुन अगर आपको कहना खूबसूरत गाड़ी, अब आप बनाए अभी जमीलतुन कहेंगे, आप जमीलुन नहीं कहेंगे क्योंकि सैयारा मुअन्नस से बोलता है। सैयारा जमीला अगर वक्त करेंगे तो सैयारा जमीला, और पूरे अरब लगाएंगे तो सैयारतुन जमीलतुन। अगर लंबी गाड़ी कहना सैयारतुन तवीलतुन, मुअन्नस है जो पहले अरब है इस तरह चलेगा, इस तरह होता है। ये वाला जो कायदा है ना कि लेकिन जब मौसूफ वगैरह के लिए मैं इसको भी आप छोड़ दें, लेकिन मैं आपको एक सैर कराता हूँ आगे ताकि आपको किस तरह काम करना है, प्रैक्टिस करनी है। मश्क को अभी से इसके देखें वर्ड्स मीनिंग फिर आ गया आपके पास, इसको आप याद कर लें, इसी की बुनियाद पर अगली एक्सरसाइज सॉल्व होगी आपकी, ठीक है। और जो एक पॉइंट है वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अब आप लोग इसको सही से मेहनत करें। अगर आपने इसको आज घर जाके जिस भी तरह प्रैक्टिस किया तो फिर कल इंशाल्लाह ताला मैं ये पॉइंट भी आपको पढ़ा दूंगा, और इसकी कुछ मिसालें आप लोग बना के लाइएगा। देखिए कितने सारे अल्फाज हैं आपके सामने, ये देखें क्या लिखा हुआ है, खादिमुन ये लफ्ज है ना, अब आप नोट करते जाएं। देखें अल्फाज माना में देखें अलमाजी के बाद सेकंड वर्ड क्या है, खादिमुन है, ठीक है। इसी तरह मैं ये इस तरह लकीरें भी माना रिकॉर्डिंग में, खैयातुन है, ठीक है ना, इसी तरह ज़ालानुन है, इसी तरह कसलानुन है, ठीक है। इसी तरीके से जो है खब्बाजुन है, ताबानुन है, लाइबुन है। इन तमाम अल्फाज को आपको क्या करना है, इन तमाम अल्फाज से आप तस्निया बनाए, जमा बनाए, मुज़क्कर की बनाए, मुअन्नस की बनाए, आप एक चार्ट बना लें। अब खादिमुन है ना, जैसे अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल पहले भी अलग है हमने प्रैक्टिस की, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। मेरे साथ मिलकर बोले खादिमुन, एक खिदमतगार या एक नौकर, एक खादिम हो गया ना। अब इसी को फीमेल सिंगुलर बना तो क्या होगा, खादिमतुन, क्या हो गया, सिर्फ बोलता लगा। इस तरह आप दो जो ना वर्ड्स लिख लें, बीच में लाइन भेज दें। अब आप दोनों की तस्निया बनाएं और जमा बनाएं, इस तरह एंड कर दें तो आपकी बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। आप देखें, आप जैसे आपने खादिमुन के वर्ड है तो उसको आपने कहा खादिमानी, खादिमैनी, बोले दो खादिम, खादिमूना, खादिमीना, बोले बहुत सारे खादिम, ये जमा खत्म हो गया। अब खादिमतुन पे आ जाए, अब आप बोले खादिमतानी, खादिमतैनी, बोले 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 खादिमतानी, मतैनी हो गया। अब इसके बाद जमा बनाए तो खादिमातुन, खादिमातिन, इस तरह करके खैयात को ले लें, दर्जी को ले लें, फुला फुला, इस तरह सबको आप लिख लीजिए। और इस तरह और भी लफ्ज़ हैं इसके अंदर, लामिउन है, मुज्तहिदुन है, मशगूलुन है, ठीक है ना, मबसूतुन है, ऐसे अल्फाज जो है तो इसको आप बना सकते हैं और काफी कुछ आप इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करके आ सकते हैं। फिर आप इसके बाद क्या करेंगे पता है, जब आप बेसिक इन वर्ड्स के ऊपर मेहनत कर लें फिर आप आगे इनकी सिफतें लगाएं। अब आपने, मैं एक ही वर्ड के लिए आपको मिसाल देता हूँ। अब आपने कहा खादिम के लिए कहना है, और अभी आपने एक लफ्ज़ पढ़ा इसके अंदर, देखें ये यहाँ आया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बता दूं। ये लिखा हुआ है कसलान, क्या लिखा हुआ है, सुस्त खादिम, क्या है
अब इस सुस के वर्ड को भी साथ साथ चलें। अब मेरे साथ मिलकर बोले खादिमुन कस्लानुन, क्या मतलब हो गया? हाँ, सुस नौकर मर्द हो गया, एक सुस हो गया ना, कोई एक सुस नौकर मर्द हो गया। अब आगे बोले खादिमानी, तो कस्लानानी इसी तरह चलेगा। ये ध्यान में रखिएगा, जो खादिम की पोजीशन है वो कस्लान की पोजीशन सिफत की चेंज होगी। यही बात बता रहे थे वो कि मौसूफ सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होती है। अब आप बोले खादिमानी कस्लानानी, दो सुस खादिम मर्द। अच्छा, इसी तरह इसका एक और भी ऑप्शन है, बोले खादिमैनी कस्लानैनी, बोलिए दो सुस खादिम मर्द, इसका भी मतलब। आगे बोले खादिमूना, अब कोई नहीं बोलेगा, काशिफ बताएंगे, बोले काशिफ। हाँ नहीं, खादिमूना की सिफत लगाया, कस्लानूना। अहमद आप बताइए, खादिमीना तो क्या होगा? कस्लानीना, बहुत सारे खादिम। अब आप आगे चलें, आप अपना खादिमतुन है, फबन खादिमतुन, क्या कहा मैंने? एक खादिम औरत, खादिमा। अब आप बताएं, इसके लिए वही कस्लान लगा दें। कैसे लगाएंगे आप कस्लान? खादिमतुन, बोलिए कस्लानतुन, कस्लामतुन नहीं, मीम नहीं है, नून पड़ जाएगा। खादिमतुन कस्लानतुन, ये हो गया। अब आप बनाए बेटा दो खादिमाएं, कस्लानतानी, और दूसरा भी ऑप्शन बता दो, खादी कस्लानतैनी। अब जो ऑनलाइन स्टूडेंट है हमारे साथ, एक स्टूडेंट बताएं बहुत सी सुस्त खादिमाएं, सादी आप बताएं। खादिमतैनी, बहुत सी सुस्त खादिमाएं, बहुत सी मैंने कहा है, दो नहीं कहा, दो से ज्यादा। खादिमातुन कस्लानतानुन, कस्लानातुन। हाँ, ये देखें, सब बोल रहे हैं खादिमातुन, क्या अलिफ आ जाएगा ना, और लंबी ता आ जाएगी। खादिमातुन कस्लानातुन, बोले सब बोले खादिमातुन कस्लानातुन, ये बात सही में आ गई। और दूसरा ऑप्शन जो है वो सना काशिफ बताएंगी, आप बताइए, बोल सकते हैं, बोल सकती हैं? और कस्लानातिन, सही कहा, खादिमातिन कस्लानातिन, ये हो गया दूसरा ऑप्शन। इस तरह आपने इन 8-10 जो है ना उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और अब देखें, आपको और ज्यादा थोड़ा सा आगे बढ़े अपना काशिफ भाई, ये आप देख लें। अब आप एक्सरसाइज में आ जाए आगे, अरबी से उर्दू वाली। क्या लिखा हुआ है देखें, इन्होंने एग्जांपल्स दी थी, इसको खूब पढ़ के आए, इसके तर्जुमे करके लाए। जितनी मशकें हल कर सकते हैं कल आप ये हल करके लाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ मिलके बोले, अल मुअल्लिमुस सालिहु, क्या तर्जुमा होगा इसका? नेक उस्ताद, ठीक है ना, तो नेक उस्ताद इसका माना हो गया। अच्छा, अब आप ये देखें कि मौलिम पे अल है तो साले पे भी अल है, मौलिम को पेश है तो उससे भी पेश है, मौलिम पे तानी है तो साले पे भी तानी। अब आगे आप आ जाए, दूसरा है, आगे लिखा हुआ है, बोले अल मुअल्लिमतानि सालिहतानी, बोले सोबान तर्जुमा करें इसका। ये थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह बनेगा मौसूफ सिफत, ये सारा सिलसिला। बोलो नहीं अहमद, बताए नहीं? हाँ, कितनी नेक उस्तानिया बेटा, पूरा आपने बताना है। उस्तानिया है, उस्ताद है, असातिज़ा है, क्या है, ये सब बताया आपने। उस्तानी का, आप उस्तानी के ऊपर चले, मैं एंड में बताऊंगा जी। दो उस्ताद, इस तरह तर्जुमा होगा इसका, बस ये तर्जुमा, दो उस्ताद। हाँ, जोर से बोले, दो नेक उस्तानिया, ठीक है ना। तो क्या मतलब हो गया इसका? दो नेक उस्तानिया। क्यों का आपने कहा दो नेक उस्तानिया? क्योंकि यहाँ ता भी आ रहा है, देखें, अल मुअल्लिमतानि सालिहतानी, ये ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मेल नहीं समझ लेना, ये निशानियां याद रखें, से पता लगेगा तर्जुमा ट्रांसलेशन में आसानी होगी, और बोलने में भी फिर हम सही अरबी बोल सकेंगे, ठीक है ना। अब आगे आ जाएं, अगला क्या है, आप तर्जुमा करके बता दें, अल मुअल्लिमुना सालिहुना का नेक असातिज़ा, बहुत सारे नेक उस्ताद। अच्छा, अब आगे पढ़ें, अगला वाला भी एक पढ़ लें। यहाँ अल नहीं लगाया पहले पर, तो दूसरे पे भी अल नहीं है, ये भी नोट करें, पॉइंट देखें आप। इसी तरह उर्दू से अरबी जब बनाएंगे ना, ये सब चीजों को फोकस करके फिर आपने बनानी होगी। मुअल्लिमातुन मुज्तहिदातुन, हुज़ैफा क्या तर्जुमा है?
اچھا 2 نیک استانیاں بھی ہیں محنت والی بھی ہیں، صحیح بتا رہے ہیں. دیکھیں اس کا مطلب ان کو وہ رول یاد نہیں ہے کہ جب آتون آتین آتا ہے تو کب آتا ہے، کیا ہے، اس کے مطابق ترجمہ دیکھا آپ نے. تو بیٹا اس کو محنت سے آپ یاد کرنا پڑے گا. ایک ہے، اب انہوں نے کہا ایک ہے. جب تک یہ رول یاد نہیں ہوں گے اس طرح گھومتے رہو گے، چکر کھاتے رہو گے. ہاں بھائی آن لائن اسٹوڈنٹ میں سے کوئی آپ بتا سکتی ہیں دونوں میں سے معلمات مجتہدات کا ترجمہ؟ مجتہدات کا مطلب کیا ہے؟ مجتہد کا مطلب ہوتا ہے محنتی. محنتی. تو یہ ہو جائے گا بہت کوئی بہت سے محنتی وہ ہوئے عورتیں، معلمہ، اساتذہ، استانی. تو چلیں میں آپ کو بتا دیں کہ اردو میں اگر ہم اس کو کہنا چاہیں گے تو کیسے کہیں گے. چلیں آپ لوگوں سے بھی تو پوچھ لیں نا، کون بتائے گا؟ بتائیں بھائی، کیا ترجمہ تو کریں ذرا. کاشف بھائی، انیس، کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، کوئی بہت سی محنتی استانیاں ہوگا، کیونکہ آتون آتین آ رہا ہے بیٹا. حذیفہ مونس کی نشانی ہے، جمع ہے، مونس ہے، اس کے مطابق ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس طرح اب آپ اس ایکسرسائز کو پہلے سالو کریں. ایک پوائنٹ اگرچہ رہ گیا لیکن اس سے اتنا بڑا آپ کو فرق ابھی نہیں پڑے گا. پھر وہ جب کل وہ ہوگا تو ابھی اس کے اوپر اس طرح پہلے اس کو پڑھ لینا، ایکسرسائز سالو کر لیں گے بہت آرام سے. آپ اپنے وہ جو ورڈز میں نے کام دیا نا وہ بھی آپ کر لیں گے. تو کل انشاءاللہ تعالی اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اسی پہ میں رکتا ہوں. علینا الا البلاغ.